Welcome to Yes Securities, where we don't just secure investments, we secure your future. In the ever changing landscape of finance, one thing remains constant: the need for a reliable partner. At Yes Securities, we are not just wealth managers, we are architects of financial success. Our experience over the last decade has been a steady and remarkable journey leading to growth in the labyrinth of financial opportunities. We don't just find a way, we create it. We don't build walls, we build bridges that connect ambitions to achievements. Innovation is not just a word for us, it's the heartbeat of every decision we make. Your success isn't just a goal, it's our mission, our commitment to your financial journey. We provide world class solutions across multiple products, catering to institutions, high net individuals, and retail investors across sectors. Because your success is our business. Yes, Securities, empowering tomorrow. Hello everyone, welcome to Market Connect session. Imagine a world where financial decisions are not intimidating but empowering. That's precisely our mission at Yes Securities to make finance accessible to everyone, regardless of background or experience. At Yes Securities, we don't just facilitate transaction, we enable transformation. Over the past decade, we've evolved from a transactional broker to a trusted advisor for both retail and institutional clients. Before we dive into today's topic, let's take a quick moment to reflect on our last session. On 12th June, we had the privilege of hosting the second part of navigating fixed income securities. I hope all found that session as enlightening as I did. Please join me in extending a warm welcome to today's esteemed speaker, Mr. Nitin Bagre, an industry expert with an impressive 25 years of experience in technical analysis. Expertise spans across commodities, equities, and derivatives, making him a master of predictive and reactionary analysis. Today, he'll be discussing stock selection for the post election markets. And guess what? If you miss any of our sessions or want to revisit the valuable insights shared, don't worry. We'll be uploading the entire series to YouTube under the playlist named Market Connect, so you can catch up at your convenience. Remember, this is just a one way street. We want to hear from you. After Nitin's presentation, don't hesitate to ask questions and share your doubts in the comment section. Your engagement is what makes this series truly special. We also have polls coming, so be alert. Over to you, Nitin. Hello, everybody. First of all, I want to thank you, everybody. आप इतना अपने व्यस्त दिन में से टाइम निकाल कर यहाँ हम लोग जमा हुए हैं. हमारा आज का टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन फॉर द पोस्ट इलेक्शन मार्केट्स. आप काफ़ी सालों से सिंस आप सब ब्रोकर्स है तो काफ़ी सालों से इस मार्केट में होंगे ही और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा. सो ये कुछ सिखाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि मैं अपना नॉलेज थोड़ा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में. और इसमें इलेक्शंस के बाद में जबकि मार्केट इतने हाई पर है, तो इसमें से स्टॉक्स जो हमको ट्रेड करने हैं उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए, इसका ये प्रोसेस है. ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहे. सेकंड ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम लोग जो कॉल्स देते हैं, जो आप तक पहुंचते होंगे शायद, वो पास ऑन करते हैं अपने क्लाइंट्स को. अगर आप उसके पीछे का प्रोसेस समझ लेंगे तो आगे आपको पास ऑन करने में और उनसे काम करवाने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. ये इस वेबिनार का सोच है. तो हम लोग शुरू करते हैं. टॉप डाउन अप्रोच से हम लोग स्टॉक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले इंडेक्स, फिर इंडेक्स के सेक्टर्स और सेक्टर से स्टॉक. ऐसे हमारा एनालिसिस का प्रोसेस होगा. ये प्रोसेस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस प्रोसेस से जब हम आखिरी में स्टॉक तक पहुंचेंगे, वो स्टॉक हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना
ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म के लिए ये इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स बेहतर है इस पर्टिकुलर टाइम पर या किसी भी टाइम पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसे स्टॉक की लिस्ट आपको कैसे मिल सकती है जो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली सिंस इक्विटीज से रिलेटेड है इसलिए बाइंग साइड से ही हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा वेबिनार। लेकिन अगर कोई इसमें शॉर्ट में इंटरेस्टेड होगा तो इस स्टडी को रिवर्स करना है तो उससे उसका शॉर्ट के भी स्टॉक्स मिल सकते हैं। और एक चीज ये वेबिनार के लिए सिंस इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी 200 का इंडेक्स मैंने सिलेक्ट किया है। उसके पीछे का कारण ये है कि निफ्टी 200 में जो 200 स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द मार्केट का टर्नओवर उसमें होता है। तो उसमें हमको लिक्विड स्टॉक्स भी मिलेंगे और वो 200 स्टॉक्स ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स को हर एक सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा प्रोसेस इंडेक्स से सेक्टर और सेक्टर से स्टॉक इस तरीके का होगा। अब इसमें ये जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी और का मत थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने इतने सालों से काम करते हुए जिस तरीके से मैंने पाया है कि मार्केट्स में प्राइसेस क्यों मूव होती है तो उसके पीछे के जो फैक्टर्स है वो सबसे पहले ट्रेंड है। ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइस मूवमेंट। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट्स, थर्ड है मोमेंटम और फोर्थ है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये चारों को हम एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जितनी जानकारी मुझे है इन चारों पॉइंट्स के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड हर एक टाइम फ्रेम पर ट्रेंड होता है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो उसमें भी ट्रेंड दिखेगा, आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे उसमें भी ट्रेंड दिखेगा। लेकिन 15 मिनट का ट्रेंड और मंथली चार्ट का ट्रेंड, इसमें जो फर्क है वो फर्क ये है कि मंथली चार्ट का ट्रेंड ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, वेयर एज द शॉर्टर द टाइम फ्रेम 15 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, ये ट्रेंड अनसस्टेनेबल रहते हैं। ये इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट्स हो जाती है। ट्रेंड अप होने के 5 मिनट के चार्ट पे तो दिन में ही कई बार ऊपर नीचे होके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाता है। मेन आइडिया ये है कि जो लार्जर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है हमको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो प्रोसेस ये है कि मंथली का ट्रेंड हम देखेंगे और अगर मंथली का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पर बाय का एंट्री फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अब और एक चीज मैं आपके ध्यान में ला के देना चाहता हूँ कि ये वेबिनार जो है ये स्टॉक सिलेक्शन के बारे में है कि कौन से स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए हमको ट्रेड करने के लिए अच्छे हैं। इसमें एंट्री और एग्जिट के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, वो दूसरे किसी वेबिनार में बात करेंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एंट्री कैसे करना, एग्जिट कैसे करना। यहाँ पर हम सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन की बात करेंगे कि मतलब 3 प्रोसेस होते हैं ना, 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के, कि पहले स्टॉक सिलेक्ट करना कि कौन से स्टॉक में हमको काम करना है, उस सिलेक्शन के बाद में फिर उसमें एंट्री कब करना, इसका एक अलग मेथडोलॉजी है, और एंट्री हो जाने के बाद में उसमें से एग्जिट कब करना, ये तीसरा पॉइंट है। तो हम आज सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, एंट्री और एग्जिट के बारे में कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उद्देश्य हमारा ये है कि सिंस आप लोग एपीज है, एसोसिएटेड पर्सन्स है, और आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे, हमारा जो भी एडवाइस या कॉल्स आप तक पहुंचता है जब आप सामने क्लाइंट को देते हैं तो उस समय अगर हम और आप एक ही पेज पर होंगे तो क्लाइंट को कन्विंस करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम कन्विंस कर सकते हैं।
तो आज हम सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेंड्स हर एक टाइम फ्रेम पर होता है, लेकिन जितना टाइम फ्रेम आप चार्ट का बड़ा रखेंगे उतना सस्टेनेबल ट्रेंड रहेगा। जितना छोटा आप टाइम फ्रेम करेंगे उतना वो अनसस्टेनेबल रहेगा। तो बेहतर ये है कि हम मंथली या फिर वीकली चार्ट का जो टाइम फ्रेम ट्रेंड है, उस ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मंथली का ट्रेंड अप है तो हम जाके डेली पे या आवली पे चार्ट पे जाके हम एंट्री खोजेंगे। ट्रेंड के बारे में आप तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक मैं उसका आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी सिर्फ अप ट्रेंड के ही बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें बाय एंड होल्ड वाला ही मेथोडोलॉजी होता है। इसका अपोजिट जो भी है वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो अप ट्रेंड क्या है? बेसिकली जब भी प्राइस हायर लो एंड हायर हाई बनाती है, प्रीवियस से हायर हाई, प्रीवियस लो से हायर लो, ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है तब तक अप ट्रेंड है। ये प्रोसेस चेंज कब होगा? जब हाईएस्ट वैली जो है, हाईएस्ट वैली मतलब हाईएस्ट लोअर पॉइंट, उसको जब आके प्राइस कट कर देगी, तब हम समझेंगे कि ये अप ट्रेंड का जो सीरीज है, हायर लो का सीरीज, ये खत्म हो गया है। जब तक ये चलता रहता है तब तक ट्रेंड इज अप। अब इसमें इसके अंदर का भी ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड्स होते हैं। जैसे इस ट्रेंड को, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल मंथली चार्ट आप देख रहे हैं किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, तो उसका प्राइमरी ट्रेंड रहेगा ये। लेकिन जब उसी मंथली चार्ट को आप वीकली पे करोगे तो उसके अंदर के बाइफर्केशंस आपको दिखने लग जाएंगे। इस बाइफर्केशन को इंटरमीडिएट ट्रेंड कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट, अगर आप उस टाइम फ्रेम को और कम करोगे तो उसके अंदर का भी आपको बाइफर्केशंस दिखने लग जाएगा। इसको माइनर ट्रेंड बोलेंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये चार्ट हम मंथली पे देख रहे हैं तो वीकली पे कुछ ऐसा दिखाई देगा और डेली पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ट्रेंड का डिस्कवरी चार्ल्स डॉ ने किया था। उसका कहना था कि प्राइमरी ट्रेंड के साथ में हमको ट्रेड करना चाहिए फॉर फॉलोइंग इंटरमीडिएट ट्रेंड। मतलब अगर प्राइमरी ट्रेंड ये अप है, अप डाउन, तो इस पोर्शन को हम प्ले कर सकते हैं। इस पोर्शन को प्ले करने के लिए हमको ट्रेड डिजाइन लोअर टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। लेकिन उसने ये भी एडवाइस किया है कि माइनर ट्रेंड को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि माइनर ट्रेंड को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसी चीज को अगर आप वीकली पे लाएंगे, सपोज आपका प्राइमरी ट्रेंड वीकली है, तो आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड डेली हो जाएगा और माइनर ट्रेंड आपका 75 मिनट्स का चार्ट हो जाएगा या फिर आवरली का चार्ट हो जाएगा। ये ट्रेंड है। अभी देखिए निफ्टी 200 का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये तो बार्स के साथ में एक लाइन चल रही है। ये लाइन आपको दिख रही होगी जो हाईस को कनेक्ट कर रही है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो लो को कनेक्ट करती है। तो जब तक, जैसे यहाँ पर एक लो बना है, ये हाई बना है, ये हाई है, ये लो है, तो जब तक हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे तब तक ट्रेंड अप है। अब इस पोर्शन में आप देखिए कि लोअर हाईज और लोअर लो बन रहे हैं, तो ये ट्रेंड डाउन हो गया है। और ये फर्स्ट टाइम जब लोएस्ट हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ से फिर से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। अगेन देखिए कि हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाईज बन रहे हैं। तो ये पोर्शन, ये यहाँ से जो पोर्शन है, ये अप ट्रेंड है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर ट्रेंड अप है तो हमारा सबसे पहले, जैसे मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताया था कि प्राइस मूवमेंट के पीछे के
फैक्टर्स, ट्रेंड, सेंटिमेंट, मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये चारों चीजें जब पॉजिटिवली एक ही साइड में हो जाती है तब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर सपोज ट्रेंड अप है लेकिन सेंटिमेंट खराब है तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड में मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। ट्रेंड अप है लेकिन मोमेंटम एकदम नेगेटिव है तो फिर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में तकलीफें आनी शुरू हो जाती है। ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। ये चारों चीजें जब पॉजिटिव हो जाती है तो आपको बाइंग का ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत जल्दी से बहुत अच्छा पैसा उसमें से बनाया जा सकता है। अभी हमने ट्रेंड के बारे में बात कर ली, अभी हम सेंटीमेंट के ऊपर आएंगे। सेंटीमेंट मतलब बेसिकली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका बाजार को लेके क्या रुख है। अगर ज्यादातर लोगों का रुख पॉजिटिव होगा तो बाजार चलेगा, अगर ज्यादातर लोगों का रुख नेगेटिव होगा तो शायद उस समय भले ही ट्रेंड अप हो लेकिन इस टाइप के करेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर ट्रेंड अप है और सेंटीमेंट खराब है तब करेक्शंस होते हैं, अगर ट्रेंड अप है और सेंटीमेंट भी अच्छा है तो बाजार एक डायरेक्शन में चलता है। इसलिए सेंटीमेंट को जानना बहुत जरूरी है। अब सेंटीमेंट कैसे पता चल सकता है, बाजार का रुख कैसे पता चल सकता है, उसके लिए एक एडी लाइन करके, एडवांस डिक्लाइन लाइन, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो पर्पल कलर का लाइन है ये निफ्टी 200 का क्लोज को कनेक्ट करके बनाया हुआ चार्ट है, लाइन चार्ट है। और उसके नीचे ये जो ग्रीन कलर का लाइन है या चार्ट है वो एडवांस डिक्लाइन लाइन है। ये वीकली पे हम लोग मेंटेन करते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन लाइन का मतलब क्या होता है कि एक हफ्ते में, हफ्ते के एंड में मतलब फ्राइडे को हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 200 में से कितने शेयर्स ने एडवांस किया और कितने शेयर्स ने डिक्लाइन किया, और उससे ये चार्ट बनता है। इस चार्ट की एक खासियत है कि ये नॉर्मली इंडेक्स के जैसे ही बिहेव करता है। जैसे यहाँ पर हाई बना तो ये भी हाई बना, ये हाई बना तो यहाँ पर भी हाई बना, ये हाई बना तो यहाँ पर भी हाई बना, ये लो बना तो यहाँ पर भी लो बना। तो ये बेसिकली ये एडवांस डिक्लाइन लाइन इंडेक्स को मिमिक करती है, बिल्कुल उसको फॉलो करती है। तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि जब वो फॉलो कर रही है और अप ट्रेंड में है और लाइन एग्जैक्टली फॉलो कर रही है तो इसका मतलब है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। और इसमें डाइवर्जेंस का एक इंपॉर्टेंस आता है। जैसे अगर आप यहां देखेंगे सितंबर 2023 में इंडेक्स में एक लो बना और उसके बाद नवंबर में लोअर लो बना, पिछले लो से भी नीचे का लो। वेयर एज एडवांस डिक्लाइन लाइन में हायर लो बना। इसको डाइवर्जेंस कहा जाता है कि ये दोनों जो सेम चल रहे थे अचानक एक दूसरे से अलग मुंह दिखाने लग गए। तो ये जब डाइवर्जेंस आता है तभी कुछ तो भी डायरेक्शन ऑफ मार्केट चेंज होता है। यहाँ पर जब नया लो बना लेकिन एडवांस डिक्लाइन लाइन ने नया लो नहीं बनाया, ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से अच्छी खासी तेजी हो सकती है, क्योंकि भाव तो गिर रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो एडवांस कर रहे हैं वो ज्यादा है डिक्लाइन करने वालों से, मतलब खरीदारी हो रही है। तो इसका मतलब है कि गिरते मार्केट में अगर खरीदारी हो रही है तो इसके आगे तेजी होनी है। अब ये बाजार कब घूमेगा नीचे की तरफ? जब कभी डाइवर्जेंस आएगा, यहाँ पर इस तरीके का डाइवर्जेंस आएगा कि इंडेक्स नया हाई बना रहा है लेकिन एडवांस डिक्लाइन लाइन नया हाई नहीं बना रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस हाई। ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, ये भी प्रीवियस हाई से ऊपर ही है। जब ये चेंज हो जाएगा कि प्रीवियस हाई से ये नीचे है लेकिन ये ऊपर ही है, तब हमको समझ में आ जाएगा कि अभी बाजार से निकलने का टाइम आ गया है। तो करेंटली तो इंडेक्स अप ट्रेंड में है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ये दो चीजें हो गई, दोनों फेवरेबल है, पॉजिटिव है,
ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब हम आएंगे मोमेंटम की तरफ। अभी तक हम लोग इंडेक्स को देख रहे थे, निफ्टी 200 का इंडेक्स। अभी हम स्टॉक्स में जाएंगे। हमको स्टॉक्स में मोमेंटम चाहिए। अब मोमेंटम कैसे हम खोजेंगे? अभी देखिए, ये MACD है, ये जो डॉट्स वाला टूल है ना, MACD है, ये ग्रीन और रेड आपको दिख रहा होगा। उसके नीचे जो है वो OBV है। OBV का मायने होता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम में एक टेक्निकल टूल है जिसमें जिस दिन एडवांस होता है उस दिन का वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम किया जाता है, और जिस दिन क्लोज माइनस में होता है उस दिन वॉल्यूम उस पर्टिकुलर डे का पीछे से सबट्रैक्ट किया जाता है। मतलब अगर इंडेक्स बढ़ रहा है और बाइंग बढ़ रही है तो ये ग्रीन रहेगा, इंडेक्स घट रहा है और ये रेड है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई हमको मालूम पड़ता है। अगर ये ग्रीन होता जा रहा है तो डिमांड है, रेड होता जा रहा है तो बिकवाली आ रही है। अब उसके साथ में हम मोमेंटम को जोड़ लेते हैं। ये MACD है, MACD ग्रीन और OBV ग्रीन। ये जिस समय सबसे पहले होता है वहां वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी मंथली चार्ट्स है, ये दोनों मंथली चार्ट, ये जो कुछ कर रहे हैं हम मंथली चार्ट पे कर रहे हैं। मंथली इंडेक्स का ट्रेंड अप है, मंथली वीकली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और अभी हम एक एग्जांपल के लिए मैंने अपोलो टायर्स लिया। ये एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज और अपोलो टायर्स का दे रहा हूं मैं। इसमें मैंने जो वर्टिकल लाइन मारी हुई यहाँ पर रखी हुई है, ये बताती है कि जब ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने के बाद में यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि हमको कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। जिस कोई भी स्टॉक जिस समय ये दोनों चीजें पॉजिटिव कर देता है, MACD भी पॉजिटिव, OBV भी पॉजिटिव, और मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ये 12 का मूविंग एवरेज है, ये 34 का मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और ये दोनों चीजें सेम, मतलब ग्रीन और ग्रीन, उस पॉइंट ऑफ टाइम से ये स्टॉक हमारे डैशबोर्ड पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी ये रहेगी कि फिर इसमें कब छोटा मोटा डेली चार्ट पर कोई भी पुल बैक आता है वो पुल बैक हम बाय करेंगे, लेकिन ये हमारे डैशबोर्ड पे आने के लिए ये प्रोसेस है। अब इस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एंट्री के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, ये सिर्फ डैशबोर्ड पे कौन से शेयर्स आएंगे उसके लिए हमारी बात है। तो आप देखेंगे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज भी, ये दोनों जब सिंक्रोनाइज हुए उस समय यहाँ पर, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो यहाँ से ये हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि इस शेयर पे हमको ध्यान रखने का है अभी। और ये शेयर कभी भी अगर डेली चार्ट पर या आवरली चार्ट पर कुछ करेक्शन देता है, अब मंथली में तो आपको इसमें करेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ये पोर्शन अगर आप डेली चार्ट पर खोल के देखेंगे तो उसमें 5-6 दिन का, 8-10 दिन का कुछ करेक्शन दिखेगा। वो करेक्शन में अपने को बाय करना है, और उसके बाद का ये पूरा मूव मिलता है हमको। तो ये सिर्फ डैशबोर्ड, और 2 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, भारत फोर्ज और BEL। ये जब ये दोनों सिंक्रोनाइज हुए, मूविंग एवरेजेस के ऊपर में प्राइस चली गई, उस टाइम से ये हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये जब रेड हो जाते हैं, दोनों रेड हो जाते हैं, तो ये हमारे डैशबोर्ड से निकल जाएंगे, ये एफ करने वालों के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। शॉर्ट करने वाले ये दोनों जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, OBV रेड हो गया, MACD रेड हो गया, उस समय ये शॉर्ट करने वालों के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। शॉर्ट करने के लिए और एक चीज जरूरी होगी कि प्राइस को मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, लेकिन अभी तेजी का बाजार है तो इतने जल्दी नहीं आएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये एक्टिविटी होती है कि OBV ग्रीन और MACD ग्रीन और मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस चली गई, तो वो चीज हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगी कि ये शॉर्ट टर्म में लॉन्ग करने के लिए अच्छी है। अब अगर हमको स्पीड भी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो काम कर ही रहे हम, लेकिन साथ में स्पीड भी चाहिए, तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया।
मैं 10 महीने लेता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 महीने 10 मंथ्स स्टॉक शुड बी गिविंग मोर रिटर्न्स देन इंडेक्स, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका हायर हो जाएगा। अभी जैसे देखिए ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का ही है, ये ऊपर के जो डॉट्स है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ये -20 एंड 20। -20 और 20 के बीच में ग्रे रहेगा, -20 के नीचे रेड रहेगा और 20 के ऊपर ग्रीन रहेगा। बेसिकली करना हमको ये है कि जिस दिन, अब गोदरेज प्रॉपर्टीज तो बढ़ना तो यही से शुरू हो गया है, इस पॉइंट से, लेकिन जिस समय वो 20 के ऊपर चला जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 20, मतलब इंडेक्स के अगेंस्ट में वो 20 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उस दिन ये हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है बहुत। देखिए 20% से ज्यादा रिटर्न, 20 का ही नंबर क्यों, ये नंबर क्यों लिया गया 20 का? 20 का नंबर लेने का कारण ये है कि एक 80-20 का रूल है। 80-20 का रूल ये कहता है कि जो भी काम किसी ने करना है, उसमें जितने एफर्ट्स डाले जाते हैं उसमें से 80% एफर्ट्स बहुत ज्यादा एम तक पहुंचाने में काम नहीं करते या मिडिवल काम करते हैं, लेकिन जो 20% एफर्ट्स है वो एक्चुअल में सब चेंज करते हैं और वो अपने को एम के पास में पहुंचाते हैं। ये 80-20 का रूल है। तो इसलिए हमारा जो इंडेक्स निफ्टी 200 है, वो निफ्टी 200 के अंदर में कौन से स्टॉक निफ्टी 200 से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जो 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं वो चेंज ज्यादा करेंगे। ये इसके पीछे की थ्योरी है 80-20 रूल का। तो हमको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 8-10 दिन से लेके 1 महीना, 8-10 दिन से लेके 1 महीना, इसके अंदर हमको खरीद के उसको बेच देना है। ये बेसिकली ट्रेडिंग है। तो वो स्टॉक हमको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक चाहिए और स्पीड से मूव करने वाले स्टॉक चाहिए। तो ऐसे स्टॉक हम इस ढंग से निकालते हैं कि उसमें ट्रेंड अप हो, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो इंडेक्स का, उस ग्रुप के बाद में उस ग्रुप में जो शेयर है उनका ट्रेंड अप हो, उसमें वॉल्यूम ओबीवी पॉजिटिव हो, उसमें एमएसीडी पॉजिटिव हो और उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ 20 के ऊपर हो। तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने डैशबोर्ड पर रखते हैं और उस डैशबोर्ड पर जब भी उसके अंदर में छोटा मोटा करेक्शन आता है तो उसको बाय करते हैं। करेक्शन एंट्री इज अ डिफरेंट थिंग, एंट्री हम अगले सेशन में कभी लेंगे, लेकिन करेक्शन में ही हम बाय करेंगे। हम चलते हुए बाजार में बाय नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्शन में बाय करने से क्या होता है कि हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ स्टॉप्स नहीं होंगे, लेकिन स्टॉप्स बहुत छोटे होंगे और नंबर ऑफ जो गेन्स होंगे वो ट्रेड्स में काफी ज्यादा होंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये बीईएल का चार्ट है, बीईएल के चार्ट पे देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, ओबीवी ये ग्रीन हो गया और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ग्रीन हो गया। उसके बाद के कोई भी करेक्शन में हम खरीदेंगे। उसके बाद में देखिए ये दूसरे या तीसरे महीने में करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद लेकिन तब तक ये फिर ग्रे हो गया था, मतलब 20 के नीचे आ गया था। तो नेक्स्ट जब वो 20 हुआ उसके बाद फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हुआ है, ये डॉटेड रेड लाइन के बाद में, शायद मेरा कर्सर दिख रहा होगा। तो ये जो छोटा सा करेक्शन है ये तो बाय करने के लिए बहुत अच्छा मौका था, और ये तो मंथली चार्ट है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर काफी अच्छा गेन हो जाता है। और हर बार आप देखिए एवरी बार कुछ तो भी रिट्रेस करता है। ये डेली चार्ट पर ये सब बड़े करेक्शंस आपको दिखेंगे, और जब तक ये ग्रीन है, ये तीनों चीजें रिलेटिव स्ट्रेंथ, एमएसीडी, ओबीवी, आपको हर करेक्शन को बाय करना है। तो इसलिए ये चीजें अपने डैशबोर्ड पे होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं मेटास्टॉक यूज करता हूँ। मेटास्टॉक में से एक क्वेरी, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें से आप क्वेरी मार के ये रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओबीवी, एमएसीडी, ये तीनों चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं।
डेटा sort by B, relative strength, add level, OBV, add level, MACD. Largest to smallest. पिछले 10 निफ्टी 200 के स्टॉक्स में से पिछले 10 महीने में प्रेस्टीज एस्टेट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 142.67% का। अभी इसमें आप देखेंगे ये जो लिस्ट है ये 200 की लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें स्टॉक्स 172 ही है, 172 स्टॉक्स लिए गए। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो टूल्स है, ये टूल्स को कुछ स्टॉक्स में डेटा बहुत कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ महीने पहले, जो अभी 2-3 महीने पहले कोई चीज लिस्ट हुई है और वो निफ्टी 200 में आ गई है, या पिछले 6 महीने में कोई चीज लिस्ट हुई है और वो निफ्टी 200 में आ गई है, तो इसके पहले जो मैंने आपको टूल्स दिखाए वो टूल्स इतने कम डेटा के ऊपर में कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो जितना डेटा है उसके ऊपर कैलकुलेट करने के बाद में 172 स्टॉक्स के ऊपर में ये सब चीजें उसके डेटा पॉइंट्स हमको मिले हैं। बेसिकली ये करना है, सॉर्ट करने के बाद में 50 के ऊपर जितने स्टॉक्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 50, ये स्टॉक्स इवन हम 3-4 दिन के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक्स आप आवरली चार्ट या बेहतर होगा 75 मिनट्स का चार्ट यूज करें, और उस चार्ट पर कभी भी कोई भी करेक्शन छोटा मोटा मिलता है तो उस करेक्शन अगर आप बाय करेंगे, क्योंकि ओबीवी पॉजिटिव है, एमएसीडी पॉजिटिव है, तो ट्रेंड अप है और रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है, तो छोटे से करेक्शन के बाद में भी ये स्टॉक्स बहुत अच्छा चलेंगे। आप HAL का चार्ट ओपन करके देख लीजिएगा और आवरली चार्ट के ऊपर में आप 34 EMA SMA दोनों डाल के देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि वो 34 पे आके पलट जाता है, 34 पे आता है फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। हालांकि वो उसका डेटा ज्यादा नहीं है इसलिए इसमें वो इंक्लूड नहीं हो पाया, लेकिन उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो ये जो 50 के ऊपर वाले स्टॉक्स है, इनमें आप 4-5 दिन का भी ट्रेड कर सकते हैं। 50 से नीचे वाले जो स्टॉक्स है 20 तक के, इसमें आप 12-15 दिन, 1 महीने का ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक्स जो 50 के नीचे वाले हैं ये थोड़ा सा स्लो चलेंगे कंपैरेटिवली जो 50 के ऊपर है, ये ज्यादा फास्ट चलेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कितना फास्ट चल रहा था, उसका कारण ही है कि ये 50 के ऊपर था और ओबीवी और एमएससीडी दोनों पॉजिटिव थे। एनएमडीसी भी आपके ध्यान में होगा, हीरो मोटर्स भी आपके ध्यान में होगा। तो ये आपको ऐसे लिस्ट मिल जाती है। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस जो है वो इस लिस्ट को फाइंड आउट करने का है कि जो 50 से ऊपर है, हमको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो ऐसे स्टॉक्स की हमारे पास में लिस्ट होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में हमको गेन दे सके। तो ये उस स्टॉक्स की लिस्ट है, ये लिस्ट तक पहुंचने का प्रोसेस है। अब हम लोग जो कॉल्स देते हैं, आप जो ट्रेंड फॉलोअर करके, शायद आप तक पहुंचता है पता नहीं, ट्रेंड फॉलोअर करके हम लोग एक कॉल देते हैं, उसमें स्टॉक जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इसी प्रोसेस से फाइंड आउट होता है और उसका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है। उसमें कुछ स्टॉप्स भी होते हैं, लेकिन वो स्टॉप्स 3-4-5% से ज्यादा नहीं होते, जबकि गेन्स आपके 11%, 12%, 15% तक चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके पास में वो मेल या व्हाट्सएप के थ्रू वो कॉल आएगा, उसमें हम लोग चार्ट भी इंक्लूड करते हैं
उस चार्ट के ऊपर में आपको ये MACD और ये तीनों टूल दिखेंगे। तो ये चीज़ आप क्लाइंट को भी काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से इस इवेंट के बाद में उनको समझा सकेंगे। आई होप कि ये शायद आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और एंट्री एग्जिट का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सिंस हमारा ऑब्जेक्टिव था इस लिस्ट तक पहुंचने का और उसके पीछे का रीजनिंग बताने का, तो मैं ये वेबिनार इसके साथ में यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर, आई अप्रिशिएट फॉर टेकिंग ऑफ टाइम। थैंक यू। As we conclude, let's apply this newfound understanding to make informed financial decisions. To all attendees, thank you for joining us. Let's continue this journey together. Stay informed, stay inspired, and stay empowered. Keep an eye out for our next informative webinar. Until then, stay connected with us for more updates. Thank you once again for being a part of Yes FinPulse.